Assalamualaikum dear students, this is subject English for class 6th. Today we are going to start a new lesson, that's a story titled A Tale of Two Birds. This is a story, its author is anonymous. Anonymous means unknown. The author of this story is not known, actually not mentioned. Here we can find that the story is about two birds whose mother dies due to a storm, and the two birds get separated from each other. A mother bird is there. The mother bird has two young birds. The mother bird gets killed in a storm. The two young birds get separated. Each found a different home. Now the moral of the story, actually it is about the company of a person. It tells us that if a person is reared in a good company, he becomes a good person, and in a bad company, a person becomes definitely a bad person. So it's about the company. As we know, a phrase is there, better alone than in bad company. And another proverb is there. A person is known by the company he keeps. Here, let's begin with the story. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm, and the young birds were separated from each other. Each found a different home. So the story is about, यहाँ पे क्या होते हैं इस कहानी में, दो एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं. पहले एक मदर बर्ड होती है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक जंगल में रहते हैं. The mother bird was killed in a storm. जो मदर बर्ड है वो एक तूफान में मर जाती है, और and the young birds are separated from each other. और जो दो ये बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, जुदा होते हैं. Each found a different home. और दोनों में से हर एक को अलग अलग जो है जगह, नए घर मिलते हैं. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक दिन की बात है, एक जमाने में जो एक बर्ड होता है उसके दो बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, एक जंगल में रहते हैं. न्यू बॉर्न बेबीज कहते हैं दोज बेबीज हु आर रिसेंटली बॉर्न, नवजायद बच्चे या नवजायदा बच्चे. यानी एक बर्ड होता है, उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो एक जंगल में रहते हैं. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेरी ट्री, एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. They had a nest in a tall shady tree. उनका जो घोंसला था, उनकी रहने की जगह है, वो जो है थी वो एक लंबे से पेड़ पे थी. वो लंबा पेड़ था, शेडी ट्री था, काफी छांव था, घना एक पेड़ था, उसी में वो रहते थे. The mother took care of her little ones day and night. वहां पे उसी पेड़ के ऊपर वो मदर जो है उनका ख्याल रखती थी पूरा दिन रात अपने बच्चों का. One day there was a big storm. एक दिन की बात है, वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया. तूफान आया. There was thunder. वहां पे गरज थी. Lightning, जो चमक थी, गरज और चमक, जिनको पश्पट वनाश वजमुल ते गगराय. And rain was there. बारिश भी थी. And the wind blew down many trees. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वर्ड एक्चुअली ये फ्रेज है. Phrase is a combination of two or more words. They don't have a subject and predicate. Meaning होता है लेकिन complete meaning नहीं होता है. Phrase becomes a part of the sentence. Phrase क्या है? Blow down. Blow down means to destroy. इसी की second form है verb की, इसमें verb blow है. इसी की second form है blow, blew, blown. तो इसी की second form है blew down. यानी उस आंधी ने, उस storm ने, तूफान ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया, destroy किया. And the wind blew down many trees. बहुत सारे पेड़ों को, दरख्तों को गिरा दिया. The tall tree in which the birds lived also came down. वो जो लंबा सा पेड़ था जिसपे वो birds रहते थे, जहाँ पे उनका नेस्ट था, वो भी नीचे गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ी सी शाख आ गई, वो जो है उस नेस्ट को टकरा गई. हिट द नेस्ट, उनके घोंसले को टकरा गई. एंड किल्ड द बर्ड, और जो बर्ड था वो मर गया. यानी उन बेबी बर्ड्स की जो मदर थी वो जो है मर गई.
the bird was killed. Fortunately for the baby birds, लेकिन fortunately खुशकिस्मती से उन baby birds के लिए, ये fortunately जो है ये adverb है. Adverbs को हम अक्सर हमेशा नहीं, अक्सर ऐसे पहचानते हैं कि उनके लास्ट पे ly होता है. Fortunately इसका अगर एंटोनियम हम देखेंगे, अपोजिट देखेंगे, वो unfortunately आएगा. लेकिन उन बच्चों को, बेबी बर्ड्स को खुशकिस्मती ये थी that the strong wind blew them away to the other side of the forest. ये जो तेज आंधी थी वो उनको उड़ा ले गई जंगल के दूसरे तरफ, यानी उस पेड़ से वो उनको ये आंधी जो है उड़ा के ले गई और जंगल की दूसरी तरफ छोड़ दिया. One of them came down near a cave. Cave कहते हैं dark hollow in a cliff, हिल और अंडरग्राउंड. कहीं अंडरग्राउंड में जमीन के अंदर या किसी छोटी पहाड़ी पे या कहीं चट्टानों के बीच में एक अंधेरी सी खाली जगह होती है, उसको केव बोलते हैं. उर्दू में गुफा बोलते हैं या गार बोलते हैं. कोशिश पर गुफ बना. एक और वर्ड भी है डेन, DEN, डेन. डेन भी ऐसे ही ऐसा ही मीनिंग उसका है, उसको भी गार या गुफा कहते हैं. तो One of them came down, उनमें से एक बर्ड नीचे आ गया, गिर गया, near a cave, एक गुफा के पास, where a gang of robbers lived. A gang of robbers. Gang of robbers कहते हैं चोरों की टोली को. A group of criminals. A group of criminals who work together. Gang यहाँ पे collective noun है. Gang it stands for so many robbers. यहाँ पे gang collective noun है. जिस तरह हम कहते हैं a class of students. तो एक जो है एक केव के सामने गिर गया एक बर्ड जो उसी केव में रहते थे. A group of a gang of robbers. The other landed outside a ऋषि's आश्रम. और दूसरा जो है वो एक साधु के, संत के, महाराज के आश्रम के आगे गिर गया. A little distance away, उससे थोड़ा दूर, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर उससे गिर गया. ऋषि कहते हैं एक साधु को, या सेंट कहते हैं, हर्मिट कहते हैं, उसको ऋषि बोलते हैं. Days passed and the baby birds became big birds. दिन गुजरते गए और ये बर्ड्स जो है बड़े होते गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन ये हो गया कि वो king of the country जो है वो शिकार करने के लिए वहां पे आ गया, उस जंगल में आ गया. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन देखी एंड रोड आफ्टर इट. राइड, एक एक्चुअली ये राइड आफ्टर फ्रेज है. राइड कहते हैं चढ़ना, घोड़ी चढ़ना, गाड़ी पे चढ़ना. राइड आफ्टर यानी गाड़ी पे चढ़ के पीछा करना. राइड की सेकंड फॉर्म है रोड और थर्ड फॉर्म है रिडन, RIDDEN. राइड, रोड, रिडन. अब वो किंग जो है अपनी घोड़ी पे चढ़ा और उस हिरन का पीछे करने लगा. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. ये हिरन जो है जंगल के अंदर चली गई और किंग पीछा करते करते उसके पीछे चला गया घोड़े के ऊपर. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. इतने में ही क्या हुआ कि बादशाह को रास्ता भटक गया, बादशाह अपना रास्ता भूल गया, वो भटक गया यानी एंड डिडंट नो वेयर ही वाज. उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे है. यहाँ पे एक और वर्ड है लैंड. लैंड कहते हैं, अगर एज नाउन देखें लैंड कहते हैं जमीन को, लेकिन लैंड यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुआ है. लैंड, लैंडेड, लैंडेड. लैंड मीन्स टू कम और फॉल टू द ग्राउंड, यानी नीचे गिरना या नीचे आना. तो ये हो गया इसका पहला पैराग्राफ. इसके अब आगे देखेंगे कल इंशाल्लाह, टुमारो.